Hi guys, am I audible to all? A quick check. Am I audible? Yes. Yes, am I audible? Yep. Yep. Okay, great. So let's start with today's session. Basically, this is for all IFOA April 2026 planners. As you know that IFOA registrations have started basically for members, and for non-members it's going to start soon. And we have a last date also approaching. So multiple students were approaching us on individual level basically with respect to exam planning. So we thought ki let's just come live and discuss all your doubts. Basically, this is not any technical session. We are not going to discuss any particular subject here, but yes, all your plans with respect to April 2026. What you should do, basically targeting any particular subject or overall tips and tricks we will be sharing in this session. And before we start with questions addressing, I would request every one of you that in case you have yet not subscribed our YouTube or Instagram channel, please do that, because all those who have already taken training from us from the past years, you must be knowing that when we are near to exams, we do start with our like discussion sessions or any particular topics or different tips and tricks videos. So do subscribe to those channel, because it's quite possible that you might miss on any notification, but if you have subscribed to the channel, it will show to you. So your LinkedIn, Instagram and YouTube channels, please do that, because separate content, different content is there for each of the platform. For Instagram you will get insta specific reels. For YouTube we have specially started with marathon series. So for they have I think the team has already circulated one video on CP1 about marathon. So in marathon series we will be discussing multiple things, and those will be there on YouTube. So do subscribe to that, and do make sure that you're watching each and every video that is going out. And apart from the marathon series, we have different write-ups planned for LinkedIn. So sometimes you don't have time to go through the entire video. So what we have done is we have planned multiple pointers. For example, if you are doing some mistakes or certain things to remember near to this exam, so targeting particular subjects. So do subscribe to our LinkedIn page as well, because recently we have floated multiple articles, and a lot of articles are in line till April and May exams. So do make sure that you are not missing on any of the notification. And I will also ask the team to share all the specific, for example, if you are putting an article say on CM1, so we'll ask the team to share with respective CM1 students too. But it is quite possible that sometimes you guys miss on any notification, so it's for your benefit only, because we don't want that lot of time is both of our time is going in constructing articles that actually help you, and in coming out with those videos that actually student faces doubt in. So we want that all of our students should benefit from that, because sometimes whatever you guys are asking, that is only what we are producing in the videos. So if one doubt comes to me, so instead of asking when addressing it on individual level, what we do is we try to make a video on that. So reels, long videos, marathon specific videos and articles, that's must for each and every student. So do make sure that you have subscribed to our channel. And yes, now you can put on your questions. We are here for all your help, guiding you from April 2026 attempt. And students, this is my humble request. Don't hesitate to put your doubts because in live sessions on WhatsApp chat we receive hundred of messages of yours. तो ये वाला सेशन आप लोगों के लिए ही है. आपको कुछ भी डाउट आ रहा है कि दो सब्जेक्ट्स देने हैं, तीन सब्जेक्ट्स देने हैं, हाउ शुड वी अप्रोच टू अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, कैसे हमें पढ़ाई करनी है, लास्ट 2 मंथ्स की क्या प्लानिंग होनी चाहिए. Feel free to raise anything in this session. Me and Silky will give you the detailed response on that. So yes, we can start with the questions now. Your question. Guys, be quick. We have multiple things Um, planned. Yes, Manya.
मैम एक्चुअली जैसे मैंने पहले CB1 CM1 एंड CS1 प्लान किया था, बट इवेंचुअली व्हेन आई गॉन थ्रू द syllabus, तो आई एम फीलिंग लाइक आई एम enabled to do on like I'm able to give only two papers, CM1 and CS1 now, because I have not touched and also prepared for CB1 till now. So, in the ongoing syllabus, like I revised the CM1 syllabus and the chapters, like I did from tomorrow, I did like 7 chapters I have done. I have revised them, but when I'm revising, like उसमें इतने डाउट्स आ रहे हैं, लाइक छोटे छोटे डाउट्स हैं जिनमें प्रॉब्लम आ रही है क्वेश्चंस में, जैसे एक एक टाइप ऑफ क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है, तो वो क्वेश्चन का टाइप मैं छोड़ के आगे बढ़ रही हूँ, क्योंकि मैंने एक वो टाइप ऑफ क्वेश्चन का एक सेट बना लिया, सिमिलर क्वेश्चन का एक डॉक में डाल दिया, सेव कर दिया उसको, फिर नेक्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चंस में मैं चल गई। तो लाइक वो पार्ट ऑफ क्वेश्चन मैंने अभी छोड़ दिया, बट क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि अगर मैं उस पर अगर लेके बैठी तो मेरा पूरा दिन फिर चला जाएगा, और मैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नहीं रह कर पाएगा, फिर वो अगले दिन का टारगेट बन जाएगा। तो कहीं ना कहीं मैं उस चीज़ में लैग कर रही हूँ। तो अगर ऐसा हो सके कि एक 30 मिनट्स ऑफ मीट किसी मेंटोर के साथ, आपके साथ ही नहीं अगर आप बिजी हैं तो, या किसी के साथ भी एक मीट हो जाए जिसमें मैं अपने डाउट्स एक बारी फेस टू फेस या जो वॉइस टू वॉइस में ट्रांसफ़र कर पाऊँ, क्लैरिफाई कर पाऊँ, तो बहुत इजी हो जाएगा समझना, और बहुत टाइम लेस, मतलब टाइम कंज्यूमिंग बिल्कुल नहीं होएगा वो। अभी क्या, अगर मैंने एक्चुअली 2 दिन से मैं आपके उनसे कांटेक्ट कर रही थी जो नंबर्स आपने दे रखे हैं, बट उनसे क्या होता है, वो डाउट पोर्टल पर डालने के लिए बार बार कहते हैं, वो डाउट पोर्टल से क्या होता है, मुझे अगले सेशन के लिए वेट करना पड़ेगा, वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा मुझे। मतलब जैसे अभी 2 महीने ही बचे हैं, बिल्कुल 2 महीने भी ऐसे बचे हैं कि बिल्कुल ऑलमोस्ट है ही नहीं। तो उस चीज़ में लगता है कि बहुत टाइम जल्दी जल्दी हो जाए, सारे डाउट्स जल्दी जल्दी क्लियर हो जाए, तो वो दिमाग में बहुत फास्ट फास्ट लाइक रहता है। तो अगर Yes, वो, so I have हाँ। understood your situation. Basically, this is not your हम्म। situation. This is the situation. अगर हम आपकी जगह हम भी होंगे, तो point is कि when हाँ we हाँ। are near to exams ना, तो issue is कि if we are getting any doubt, we want that doubt to get resolved ASAP. So that thing is हम्म। at least clear, and we can move to the next set of chapters. So that's completely fine. See, team ने आपको डाउट पोर्टल में डालने के लिए इसलिए बोला है because that's the process involved, but you don't have to worry about anything because doubt sessions definitely on a regular basis हो ही रहे हैं. So whatever doubts that you are facing in, you can just if it's something very urgent, so you can just mail it, and the respective faculty will get back to you as soon as possible. So you don't have to worry ki whether the mentor would be assigned or not. We believe in this particular thing that if we are taking the videos or if we are taking the entire course, so we both are available for addressing all your doubts. So sir will be there, ठीक है? तो you don't have to worry, and we will be scheduling a session soon as we receive your doubts. ठीक है? ओके, Also, थैंक to यू add मैम। on, Manya, we have this हम्म। time done the revision chapters of all the course. तो अगर आप उन वीडियोस को भी दोबारा गो थ्रू करोगे तो आपके चैप्टर्स जल्दी जल्दी रिवाइज होते जाएंगे. इंस्टेड ऑफ गोइंग थ्रू ईच एंड एवरी चैप्टर अगेन एंड अगेन, यू कैन जस्ट गो थ्रू दैट रिवीजन सीरीज जो हमने CM1 में इस बार करी है. दैट विल गोइंग अच्छा। टू हेल्प यू अलॉट इफ यू आर लैगिंग बिहाइंड विद द कोर्स. एंड हम्म। आपका जो डिसीजन मेकिंग है कि मुझे 2 देने चाहिए 3 देने चाहिए, इट ऑल डिपेंड्स कि हमारे जो वीकली टारगेट्स आ रहे हैं आप उनके साथ एट पार पे हो या नहीं. जिन सब्जेक्ट से एट पार हो उन सब्जेक्ट को तो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड फिल कर दो. लेकिन अगर आपको लग रहा है एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट मेरा लैग बिहाइंड हो रहा है, तो अगले 10 डेज आप होल हम्म। हार्टेडली 10-10 घंटे 12-12 घंटे इन्वेस्ट करो, उसको हम्म। अच्छे से एट पार आओ. फिर आप बेशक 10th और 11th फरवरी को मेरे से या मैम से एक बार कनेक्ट करके डिसीजन मेकिंग कर सकते हो कि मुझे सेकंड सब्जेक्ट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए. बट एक सब्जेक्ट तो आपको स्ट्रेट अवे फिल करना ही चाहिए, बिकॉज ये ना हो कि हम 3 सब्जेक्ट से स्टार्ट करें थे और एंड अप हम एक सब्जेक्ट पे करें. दैट विल हाँ। नॉट मेक सेंस. हम्म। Definitely go for 2 subjects. For that, हम्म। just fill one subject straight away. And second subject, you can take a call somewhere around 10th or 11th February by having हाँ। a call with me or ma'am. यस सर। सर मैंने लाइक 3 पेपर्स का हुआ था डिसाइड, बट मेरी कल ही मैंने बात करी आपके एक मेंटोर से, तो उन्हीं ने बताया कि मैंने उनसे सारी स्ट्रैटेजी डिस्कस करी कि मैं कहाँ पे हूँ अभी और मुझे आगे क्या करना चाहिए। तो उनसे उस सबसे डिसीजन ये हुआ कि मैं 10th फरवरी तक प्रैक्टिस करूँगी CM1 और CS1, Yes. जितना भी लैग हो रहा है मेरा, जितने भी चैप्टर्स बचे हैं वो करके फिर बट बट आप इसमें एक सब्जेक्ट को अपना मेन सब्जेक्ट मान के उसको भी फिल कर दो.
अदरवाइज ये ना हो कि हम अच्छा दोनों को ही करके एंड अप किसी एक को भी प्रोसीड करके ना हो, एक आपको अपना मेन सब्जेक्ट मान के फिल कर देना चाहिए, सेकंड अच्छा सब्जेक्ट जो होगा आपका उसको हम कॉल लेंगे 10th 11th। बट जिस दोनों सब्जेक्ट में जिनमें आपको ज्यादा कंफर्टेबल हो रहा है वो एक सब्जेक्ट आप स्ट्रेट अवे फिल कर सकते ठीक है। हैं, ठीक है। ठीक है सर। लेट अस प्रोसीड विद द नेक्स्ट क्वेश्चंस। Yeah, थैंक यू so सर। I am sorry. Yeah, so I'm appearing for CP1 this time, and I'm still going through the last 7 chapters of CP1, basically uh, from 17 to 23 section, and also uh, 1 to 4. And I haven't looked at paper 2, so I'm a bit stressed. I'm not sure if I should fill the paper. Uh, Okay. So and see, definitely you should be filling the paper because as you have mentioned that you are just left with last 5, 7 lectures, right? I mean chapters, sorry. So yes, you should definitely fill it. And if you are worried about paper 2 for that, there's only one thing that can help you. That is the practice. And I will not recommend you to directly pick any particular past paper and straight away start practicing. I always say that it is very very important that you have to watch at least some of the past papers lectures, if not all are possible, because when we start with the course, see, at this point of time when we are in February and we have our exam scheduled in April, so we won't be guiding you ki yes you have to watch past papers lectures, because that is something that we are already telling from the past multiple months. Now the point is to do very smart study, and when we are doing smart studies we have to understand that how we can clear the exam. Now for this you have like as you have mentioned that you are worried about paper 2, so for that I would recommend you, there are multiple lectures on the portal in which we have discussed past papers related to paper 2. If you don't have time to go through all the lectures, just ping to the team, they will ask you they will give you a list of important lectures to watch, and just watch those lectures. It will help to build your confidence as well, and after that you can move to directly questions practice of past paper 2. You can pick paper 2 of multiple years and directly practice them, but before doing that do watch past papers lectures. And can I also ask, so for example, when I go through I've bought revision notes. So when I go through those questions, in some questions I have doubt. So when I opened the portal just to see the past paper lectures, Mm-hmm. I saw instead of like marked being, it's not marked as 2022 past paper discussion. Mm-hmm. It's like chapter 8 to 10, you have 3, 4 Yes, videos, because then 11 to. we have done discussion chapter wise. So in case while going through any of the questions, see if it is something that's a long doubt, so you can definitely mail it. Because in CP1, the doubt kaisa rahega? Basically, you would be confused ki whether what I'm writing is correct or not. So you don't have to keep those things to yourself. You can just simply mail us ki this is my answer and this is what the standard answer is. So do you feel whether my points are correct or not? So I will reply to you. And if I have a doubt which might be captured in one of the video, I can just send that, and in Haan, case sure. that recording is there, then the team can Yeah. share it with Yes. me, right? Yes. So we will tell you okay, which video you need to watch. Well, I don't think so. The entire course is already covered by paper 1. So paper 2 is just testing on that course, right? Yes, yes. There's nothing extra that you need to do on paper 2, but there's a style of answering paper 2 differ. So we just have to understand the style and presentation for paper 2. Thank you. Okay, next doubt is from Drishti. Sir, I have opted for both CP2 and CM1 courses, but I can see both exams are on same day. हाँ, ये थोड़ा सा इशू है इस बार, क्योंकि पहले क्या होता था, मॉर्निंग और इवनिंग के दो शिफ्ट्स में आईएफओ के एग्जाम्स कंडक्ट होते थे, बट अब प्रोटोकॉल्स के चक्कर में, आपका प्रॉक्टरिंग के चक्कर में उन्होंने अब ये एएम पीएम वाला सीन बंद कर दिया। तो दृष्टि, व्हाट माय एडवाइस विल बी फॉर यू इज डू गो फॉर सीएम1, बिकॉज सीएम1 एक बड़ा एग्जाम है, ठीक है। तो सीएम1 डेफिनेटली हमें प्रोसीड करना चाहिए। सीपी2 इज अ फिलर एग्जाम। CP2 can hardly we need 50 to 75 hours. तो ऐसा CP2 आप एक पर्टिकुलर डाइट को असाइन करो, दैट विल नॉट मेक मच सेंस। CP2 आप अगली बार किसी और एग्जाम के साथ क्लब कर सकते हो, डिपेंडिंग आपके कौन से एग्जाम्स बचे हैं। इफ यू आर अटेंडिंग CM1, आई एज्यूम कि आपका अभी CM2 तो डेफिनेटली बचा होगा, और हो सकता है CS2 बचा हो, तो उसके साथ आप CP2 को क्लब करके यू कैन प्लान दोस एग्जाम्स इन दी नेक्स्ट डाइट, बट डोंट लीव CM1 for CP2. CP2 is a filler exam which can be given at a later stage as well. Okay, next doubt is from Aryan. How to manage two subjects at
one go. CS1, CO2. Just follow the weekly schedules. As I mentioned in my each and every class, कि अगर हम 2 एग्जाम्स प्लान कर रहे हैं, so we need to stay at least 1 week ahead of the target. So आपके पास जो टारगेट्स आ रहे हैं, तो अगर आपके पास मंडे को टारगेट फ्लोट हुआ है, तो आपका ये होना चाहिए वो वाले टारगेट्स हमारे मैक्स बाय ट्यूसडे और वेडनेसडे ओवर हो जाए, और उसके जो रिमेनिंग 3-4 डेज बचे हम उससे एटलीस्ट आगे थोड़ा सा और प्रोसीड कर जाए, बिकॉज 2 एग्जाम्स में सिर्फ हमें 1 वीक अहेड चलना है, बिकॉज वो 1 वीक का ही हमें क्वेश्चन चाहिए एक्स्ट्रा, जिसमें हमें रिवीजन एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी. सो अगर मैं अपना CM1 का बताऊं, वी आर समवेयर एट चैप्टर 18 राइट नाउ. तो चैप्टर 18 आपका कवर हो जाना चाहिए, सारे स्टेप्स जैसे हम क्लास में बोलते हैं, और 19-20 में आप अगले वीक तक प्रोसीड कर जाने चाहिए. सिमिलरली जो मैम ने CB2 के टारगेट्स दिए होंगे, उससे आप एटलीस्ट 1 वीक अहेड रहो. इन दिस मैनर यू कैन कोप अप विद बोथ CS1 एंड CB2. ओके, CS1, हाँ CS1 के अंदर हम वी आर एट चैप्टर 10. ठीक है, उसी तरीके से. Next doubt is from Vanshika. I'm facing problem in Excel because it takes too much time to complete one video. Also in maths typing while doing CT1 due to different format, sometimes things mess up and it gets messed up. हाँ, तो ये बेसिक इश्यूज है बेटा. देखो, जितना आप प्रैक्टिस करोगे ना, उतना आपको वो फायदा होगा. देखो, वीडियो को आप ये मत सोचो कि अगर मैं एक वीडियो देख रही हूँ तो मेरे उतना टाइम जा रहा है. डोंट गो फॉर क्वांटिटी, गो फॉर क्वालिटी. इवन इफ देयर इज अ 1.5 hours वीडियो एंड वी आर प्रैक्टिसिंग सर्टेन क्वेश्चंस इन दोस वीडियो, लेकिन आपका क्या एम होना चाहिए कि उस वीडियो में जो मुझे टाइम ड्यूरेशन दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल 5 मार्क्स के लिए मैंने आपको 7 मिनट्स दिए, आप वीडियो को पॉज मत करो, आप वीडियो को चलने दो. उसी 7 मिनट के गैप में आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है. अगर आप नहीं कर पा रहे, दैट मीन्स मच मोर प्रैक्टिस इज रिक्वायर्ड. आपको उस स्टेज तक आना है जहां पे आपका 5 to 6 मार्कर क्वेश्चन 8 to 9 मिनट्स में हो रहा है. एग्जाम में हमारे पास डबल टाइम होगा, लेकिन एग्जाम में अपना एक प्रेशर भी होगा. तो एग्जाम में आपके पास हर एक मार्क के लिए 2 मिनट्स होंगे, लेकिन प्रैक्टिस करते वक्त हमें इस तरीके से प्रैक्टिस करनी है, हमें हर एक मार्क को 1.5 मिनट्स में करना है. और रही बात टाइपिंग की, वो विद सर्टेन टाइम आपके पास आ जाने चाहिए. जैसे अभी मैं अपने टारगेट्स में भेज रहा हूँ, यू शुड प्रैक्टिस एटलीस्ट 50-60% क्वेश्चंस डायरेक्टली ऑन वर्ड. अगर आपने अभी तक बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं करा, तो आप इस टारगेट को थोड़ा सा लोअर कर सकते हो. अभी के लिए 20-30% डायरेक्टली ऑन वर्ड करो. तो ऐसा नहीं होगा आप एग्जाम वीक में जाओगे, डायरेक्टली टाइप करना शुरू होगे और सर्टेनली आप एकदम से स्पीड गेन कर लोगे. वो आपका एक प्रोसेस है, वो आपको प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा. अभी के लिए आपको बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं आ रही, तो आप कॉपी पेन पे सॉल्व करो और फिर देख देख के टाइप करो. फिर धीरे धीरे आप सोच सकते हो कि यार टाइप करते वक्त कौन से स्टेप्स डायरेक्टली वर्ड पे टाइप करते करते दिमाग में सोच सकते हो. बिकॉज हर क्वेश्चन को अगर आप पहले कॉपी पेन पे लिख के फिर टाइप करोगे, इट विल नॉट बी वेरी इजी टू सॉल्व फुल एग्जाम इन दिस मैनर. तो आपको इसी तरीके से अपना माइंड को शार्पन करना है कि हम साथ साथ सोच रहे हैं और साथ साथ टाइप कर रहे हैं. तो आपका जो बुक कॉपी में जो पॉइंटर्स थे, उसको आप रफ वर्क में कन्वर्ट करके अपना डायरेक्टली वैसे कर सकते हो. और वैसे भी अब आपका असाइनमेंट सीजन, टेस्ट सीजन शुरू हो गया है इस वीक से, तो आपके सारे असाइनमेंट, सारे टेस्ट के क्वेश्चन डायरेक्टली वर्ड पे टाइप होने चाहिए. आप सिर्फ रफ वर्क के लिए कॉपी पेन यूज कर सकते. Okay, so next question is by Riddhi. I'm planning to give CP1 and CP3. Is it a good strategy? Any tips for both exams, especially how to manage time with office? So yes, yes, definitely you can manage both the subjects together. The only thing is of time management only, that you have to give more than 100%, especially to CP1, because CP3 का क्या है, we take it too lightly, but that's one exam जो बहुत ज़्यादा hurdle भी बन जाता है. तो you just have to understand the requirements for both the exam. CP1 के लिए requirement है, बहुत ज़्यादा practice की requirement है, and you need to maintain balance between general and specific, where I have to be write specific points, where I can tolerate certain general points as well, how to write from book, what to learn, what to skip. So वो बहुत सारी चीज़ें हैं. जैसे जैसे आप practice करोगे, as sir mentioned, that since we are approaching assignments and test season, तो हम इसीलिए फरवरी से स्टार्ट किए. बेसिकली इसका रीज़न यही है कि वहाँ पर आकर आपको अपना सब्जेक्ट की सीरियसनेस समझ में आ जाती है. एंड नाउ इट्स टाइम टू गिव योर बेस्ट टू द सब्जेक्ट. सो यू नीड टू मेक श्योर दैट यू आर सबमिटिंग योर असाइनमेंट्स ऑन टाइम, बिकॉज दैट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड. फॉर एग्जाम्पल से चैप्टर 1 to 4 की असाइनमेंट है, ठीक है, तो आपको पता चलेगा कि येस, इन ऑर्डर टू कंप्लीट असाइनमेंट ऑफ चैप्टर 1 to 4, दैट मीन्स इट्स अ जनरल एडवाइस टू एवरीवन. दैट मीन्स I need to complete its content lectures first, and after completing its content lecture, I have to complete its past papers lectures. Now, once I am done with the past papers lectures, I can have a quick
look at it summary list, just to check whether I've covered all the questions or not. Once I am done with the summary list, then we will be moving to assignment. So that means once you have submitted the assignment, तो we assume कि that means all your steps are over. So जब आप assignment submit कर लोगे तो एक तरीके से 80% आप एग्जाम के लिए वहां पे प्रिपेयर हो जाओगे. रेस्ट के 20% जब आप टेस्ट सबमिट करोगे, उसका फीडबैक लोगे, यू विल वर्क अपॉन योर फीडबैक, दैट विल हेल्प you to improve more. And same thing for CP3, we have 4 mocks planned. So in typical exam style format 3.5 घंटे का पेपर अटेम्प्ट करते हो, और जो फीडबैक आता है उससे आपको basically you have to work upon on that. So that's the only way that you can manage both the exams together, that you need to set targets for yourself, कि आपके वीक वाइज कैलेंडर के हिसाब से अपने टारगेट्स बिल्कुल रेडी होने चाहिए, क्योंकि in this week I have to complete this much portion. Say for CP3 as such, there is no co-reading prescribed, so you have to target yourself कि okay, in this week I have to complete these 2 past papers. So when I'm saying कि you have to complete these 2 past papers, that means from reading to completing it you have to complete all together, because CP3 आप bits pieces में नहीं करोगे कि हाँ आज हम क्वेश्चन पेपर पढ़ लेते हैं, कल हम अटेम्प्ट करके देख लेंगे, फिर स्टैंडर्ड सोल्यूशन कंपेयर करेंगे, ऐसे CP3 नहीं होगा. CP3 के लिए एक ही दिन बैठो, बेशक 4 घंटे बैठो, और उसमें पूरा आप CP3 अपना एक क्वेश्चन अपना रैप अप करोगे, तभी आपको समझ में आएगा कि व्हाट टू राइट, हाउ टू अवॉइड jargons, what technicalities to work upon. Otherwise you will be mixing both the subjects, because एक सब्जेक्ट में आप टेक्निकलिटी लिखते हो और एक सब्जेक्ट में आपको टेक्निकलिटीज नहीं मेंशन करनी, तो ये कॉन्ट्रडिक्शन रहती है दोनों सब्जेक्ट्स के अंदर. Okay. And to add on to this point, स्टूडेंट्स, एक आप लोगों के लिए सबसे अच्छी चीज क्या है, जो बहुत पहले से स्टार्ट कर चुके हैं, आई थिंक वो तो ऑलमोस्ट एट पार है, लेकिन कुछ बच्चों ने हो सकता है दिसंबर एंड से स्टार्ट करो कोर्स, जनवरी स्टार्ट से करो, जनवरी मिड से करो, बिकॉज ऑफ कॉलेज एग्जाम्स, कोई मर्जी रीजन हो सकता है, किसी ने स्टार्ट पहले कर लिया फिर गैप आ गया, तो आपको ये होगा यार अभी टारगेट में जा रहे हैं चैप्टर 18, हम अभी चैप्टर 2 पे हैं, तो हम कैसे कोप अप करें. एक सबसे बेस्ट पार्ट क्या है, जो मैम ने भी रेज करा, कि असाइनमेंट्स और टेस्ट सीजन पहले हम क्या करते थे, समवेयर अराउंड दिसंबर एंड जनवरी स्टार्ट करते थे. अब हमने रिसेंटली 2-3 डाइट से ये पैटर्न चेंज करके हमने फरवरी पे इसको क्यों स्टार्ट करा, उसका स्पेसिफिक रीजन है, क्योंकि एग्जाम जैसे ही रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होता है ना, हमारी सीरियसनेस तब स्टार्ट होती है, मे बी हमारा पैसा इन्वेस्ट होता है, दिस कैन बी वन ऑफ द रीजन, और हमें पता है कि अप्रैल अब आने वाला है, मई अब आने वाला है. तो आप लोगों के लिए सबसे अच्छी चीज क्या है, अगर आप लोगों को अपने इंटरनल टारगेट सेट करने हैं, तो आप देख रहे हो जो वीकली टारगेट्स जाते हैं, वो हो सकता है आपके लिए बहुत अहेड हो. आप अपने असाइनमेंट्स और यूनिट टेस्ट के चैप्टर्स को अपना नया टारगेट मान लो, कि फॉर एग्जांपल अगर हमारा CS1 का पहला टेस्ट फर्स्ट 5 चैप्टर्स का है, तो मेरे इस डेट तक फर्स्ट 5 चैप्टर्स के सारे स्टेप्स कंप्लीट होने चाहिए. उसके अगले 2 हफ्ते बाद हमारे मान लो बेसिक आर का है, तो बेसिक आर के सारे स्टेप्स कवर होने चाहिए. तो इससे क्या होगा, आपके टारगेट्स जो है, आपको फिर से नए टारगेट्स मिल जाएंगे, लेकिन फर्क क्या आएगा, हाँ बाकी बच्चे जो एट पार चल रहे हैं उनको दिन का अभी भी 1-1.5 घंटा पढ़ना है, जो हमने आपको बोला हुआ था, आपको हो सकता है दिन का 4-5 घंटे पढ़ना होगा. अगर आप एक्स्ट्रा मेहनत करके जो आपने टाइम लॉस करा है 2-3 महीने लेट पढ़ने का, वो आप कवर अभी भी कर सकते हो. अगर अभी भी कोई ऐसा स्टूडेंट है, कोई भी सब्जेक्ट होल हार्टेडली इस पॉइंट से भी स्टार्ट करे, ट्रस्ट मी, 2-2.5 महीने फॉर IFO एंड 3-3.5 महीने फॉर II आर रियली इनफ फॉर अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, प्रोवाइडेड यू आर गिविंग द इनफ आवर्स. जैसे हमारे CSCM को मैं बोलता हूँ 200-300 आवर्स, CB को यूनिट 150-200 आवर्स, एंड CP1 एंड SP सीरीज को यू रिक्वायर 200-300 आवर्स. तो इतने आवर्स के लिए आप अभी भी लाइबल हो करने के लिए, बट प्रोवाइडेड क्या है कि आपको डेली का वेटेज थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा इफ यू आर एट 0 लेवल एट दिस पॉइंट ऑफ. आई थिंक Saksham's question is for CB2. Silky, you can take it. Okay, so I am currently planning on giving CM1 and CB2. I have completed whole of CM1A and CM1B, and I'm lagging behind 1 or 2 lectures from batch as per CB2. Around chapter 32, I am building confidence in CM1 as more questions I'm attempted. As per Interesting CB2, question. I feel very underconfident because I do get a vague idea of the answer, but cannot get it fully correct and get very confused with application-based ones. Whether it is language or key terms, also I find CM1 very interesting and engaging, but I find CB2 very boring and cannot study. अगर CB2 की एप्लीकेशन नहीं हो रहा ना सक्षम, तो अभी तो बहुत बड़े बड़े पेपर पड़े हैं. CB2 का एप्लीकेशन बहुत बेसिक है, ये समझ लो. बिकॉज CB2 में क्या है आपके पास, मैंने स्टार्टिंग में हमेशा मैं CB1 और CB2 को सेग्रीगेट करने के लिए समझाती हूँ कि एंड CB2 सबसे इंटरेस्टिंग चीज, CB2 की थ्योरी सबसे इंटरेस्टिंग थ्योरी है पूरे एक्चुअल डोमेन में. इसके बाद वाली थ्योरी हो सकता है थोड़ी सी बोरिंग हो.
CB2 के अंदर कंटेंट बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, इतना माइक्रो की चीजें पूछने के लिए, इतनी मैक्रो की चीजें, बट अल्टीमेटली व्हाट यू आर गेटिंग इज जस्ट योर को रीडिंग। अभी आप CB1 पिक करो और इटली एज दोज हु आर एक्चुअली गिविंग CB1, देयर इज नथिंग, मतलब देयर इज नो रिलेशन विद रिस्पेक्ट टू व्हाट इज गिवन इन द को रीडिंग एंड व्हाट इज एक्चुअली गेटिंग आस्क्ड इन द एग्जाम। सो ये पता क्यों हो रहा है? बिकॉज व्हाट आई कैन अंडरस्टैंड इज दैट यू हैव लव फॉर मैथमेटिक्स, बट अभी इट इज टेकिंग टाइम टू grasp the theory portion, तो it's like सर, मतलब सर का भी यही चीज है। तो for this you need to सेम understand। आई कैन रिलेट विद मी सक्षम। मेरा भी ऐसे होता था कि थ्योरी एग्जाम मुझे लगता था कि दूर भागे और न्यूमेरिकल आता रहे। तो ये अभी आपको लग रहा है जब आप आगे जाके सीपी सीरीज में एंटर करोगे, एसपी सीरीज में एंटर करोगे, आई थिंक सीनियर स्टूडेंट्स जो यहाँ पे होंगे वो थोड़ा सा इसको हाईलाइट कर सकते हैं। उनको अब न्यूमेरिकल करवाओगे ना, वो कहेंगे क्यों करवा रहे हैं हमसे, इससे इससे अच्छा तीन चार और थ्योरी के क्वेश्चंस राइट करवा लो। तो ठीक है, वो धीरे धीरे आपका शिफ्ट होगा जैसे जैसे आप थ्योरी एग्जाम्स और पढ़ोगे। और आप ये तो सोचो, बहुत जनरल चीज है ये। CB2 की थ्योरी इज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट थ्योरी। इफ यू आर फाइंडिंग CB2 डिफिकल्ट तो बोरिंग, तो मतलब आगे के जो थ्योरी वाले पेपर्स है, क्योंकि आपकी कोर प्रिंसिपल के बाद तो सारे थ्योरी वाले हैं। CP1 तो सबसे बड़ा, यहाँ पर इतने लोग हैं CP1 वाले, उनसे पूछो कि थ्योरी क्या होती है। ठीक है, तो अभी से बोरिंग नहीं लगाना इसको, और इसको इम्प्रूव करना है आपने, बिकॉज सी वी आर हियर टू कवर अप ऑन योर वीकनेस एरिया। सो अब अपने आपको इस अपनी वीकनेस को समझना पड़ेगा कि इफ आई एम फाइंडिंग थ्योरी डिफिकल्ट तो आई नीड टू गिव मोर आवर्स टू CB2। तो अगर CM1 अच्छा लग रहा है, बट डेफिनेटली CM1 requires lot of I mean more hours compared to CB2, but at this point of time if I am not getting a hold over CB2 and I am planning to write both the exams, then increase your time to CB2, try to understand where you are lagging, try to submit your assignments, work upon your tests and see where you are performing. Ultimately you have to work on questions, because sometimes as I say in classes as well, there are a lot of things which are there in the content, but maximum things are not even asked in exam. So we have to be very smart when we are studying. So it's quite possible that the things that are disturbing you, they might not be getting tested in exam. But yes, you have to work, मतलब इसका कोई solution नहीं है, कोई exit route नहीं है। एंड डू गो थ्रू आवर पॉडकास्ट। हमने अपने पॉडकास्ट में भी ये चीज रेज करी थी। तो डू गो थ्रू माय पॉडकास्ट, आपको वहां से भी थोड़ा सा और मोटिवेशन आएगा थ्योरी पढ़ने का, क्योंकि अल्टीमेटली थ्योरी ही पढ़ना है बेटा इस प्रोफेशन में। ठीक है, देयर इज अनदर सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम आशी। प्लानिंग फॉर CS1 CM1 CS1 एट पार, CM1 लैगिंग वेरी मच, इफ आई वर्क हार्ड ऑन CM1 कैन आई डू बोथ। देखो बेटा, मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, CS1 तो आज ही भर दो। ठीक है, CM1 के लिए अगले 10 डेज बहुत अच्छे से मेहनत करो। आपको अगर 5 आवर्स मिल रहे, 5 आवर्स इन्वेस्ट करो, 10 आवर्स मिल रहे, 10 आवर इन्वेस्ट करो। अपना 10th तक अपने आप को पूरा मतलब ग्राइंड कर लो, और फिर 10th को एक बार मेरे से बात करके आप बताओ कि अब मेरा ये स्टेटस है, फिर मैं आपको बताऊंगा CM1 फिल करना है या नहीं करना। बिकॉज ये ना हो कि हम दोनों एग्जाम भर दें और फिर हम दोनों का जस्टिस ना कर पाए। मतलब आई वॉन्ट कि आप दोनों एग्जाम दो, दोनों एग्जाम क्लियर करो, बट नॉट एट दैट स्टेज कि जहाँ पे दोनों सब्जेक्ट्स हमारे रिस्क पे हो। तो CS1 अगर आपका 8 पार चल रहा है तो उसमें 10 डेज का ब्रेक आ भी जाएगा, तो इतना कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो 10 डेज का ब्रेक देके CM1 पे बहुत ज्यादा फोकस करो, और फिर हम 10th 11th को एक बार कॉल ले लेंगे whether you need to go for CM1 or not, but CS1 you are definitely giving. I think team has already put a podcast link as well. So Saksham, you can go through that. Guys, more questions. We are running short of time. Anything which is disturbing you, प्लीज फील फ्री टू डिस्कस। अदरवाइज होता क्या है, सेशन में आप लोग पूछते नहीं हो, मैक्सिमम स्टूडेंट सेशन अटेंड करते नहीं है, सेशन से पहले ही रिकॉर्डिंग की रिक्वेस्ट आ जाती है। ठीक है, मैंने नहीं रिकॉर्ड करना था, बट इतने स्टूडेंट्स के मैसेज आए हैं, दैट्स व्हाई वी आर जस्ट फोर्स टू रिकॉर्ड। मतलब नहीं करना था रिकॉर्ड। आई ऑलवेज से कि आई विल नॉट रिकॉर्ड, बट अगेन देर आर सो मेनी मैसेजेस दैट इट्स बेटर टू रिकॉर्ड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। But yes, please raise your doubts, guys, if you have any. Otherwise, we are good to go. Students, we are towards the end of the session. Please raise your questions as asked by ma'am. अब हम ऐसा कर देंगे, अगले 10 दिन के लिए क्वेश्चंस बैन कर देंगे आपके एंड से। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट पॉडकास्ट में या फिर नेक्स्ट सेशन में ही हम डिस्कस करेंगे चीजें। Junior students, senior students, do ask your questions. This session is open to all. And reason for keeping it open for all is आप सबको डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। अदरवाइज वी कुड हैव डन इट लाइक सब्जेक्ट वाइज। सब्जेक्ट वाइज हम क्लासेस करते हैं, उसमें आप
लोग सब्जेक्ट स्पेसिफिक पूछ लेते हैं। तो इसे क्वेश्चंस रखने का एक ही पॉइंट होता है कि आप लोग अलग अलग पूछो, एंड हम अलग अलग बैचेस में ये रखते हैं, तो ताकि आप लोग अपने इंडिविजुअल क्वेश्चंस पूछ पाओ। Okay, then if there are no further questions, I think we can wrap up for the day. Still, if you guys feel that there is anything left to address, feel free to put it. आई थिंक टीम हैज पुट वन क्वेश्चन. Okay, so there's a doubt that many students want to enroll for April or May exams, and many students have not confident that they should appear for April or May or not because of graduation exams. So I think the date sheets are already out, guys. So do plan it accordingly as per the date sheets because यही हम recommend करते हैं. तो अगर May के exams आपके II के साथ clash कर रहे हैं, तो II date sheet is already out. तो plan accordingly, and if your university date sheet is not there, तो मतलब I although I don't want to say this, but yes, there is an option available that in case you want to get refund from II, that is possible. तो आप fill कर दो, clash करेगा, refund ले लेना, but at least start preparing it. The point is that we should not be missing on any of the attempt. We always say कि you would never know कि next attempt तक क्या changes हो जाए. वैसे भी actuarial industry right now is so volatile on a मतलब see after every 2 months there is a change, be it IFOA or II. अभी जैसे IFOA वालों के लिए हुआ that exam center based physically proctoring हो गई start, ठीक है. इंडिया वालों के साथ हुआ कि MCQs हट गए, subjective exam भी start हो गया. तो there are so many changes that keep on happening, so never skip any attempt if possible. See, if you have decided to enter into this field, you have to study. आप ये सोचोगे कि मेरे पास पढ़ने का टाइम नहीं है, फिर आप फील्ड उठाओ ही मत, बिकॉज ये पढ़ना तो आपका जॉब के बाद भी कंटिन्यू रहेगा ही. सो इफ यू कैन And गिव this field is a lot less demanding as compared to other fields. If you compare it with CA, or if you compare it with IS preparation, NEET preparation, JEE preparation, this field is definitely very less demanding as compared to other fields. And one more thing to add, जैसे सिल्की ने अभी बोला, आप जो भी सीनियर स्टूडेंट्स हैं उनसे कनेक्ट करो, उनसे पूछो. जब हम 12 आवर्स की शिफ्ट करके आते हैं, फिर टाइम निकालना कितना मुश्किल होता है. तो कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए जो टीम ने मैसेज डाला, आप लोगों का भी गोल्डन पीरियड चल रहा है. 3 years 6 सेमेस्टर्स आर गोल्डन पीरियड. इसमें जितना पढ़ाई कर सकते हो, जितने एग्जाम्स क्रैक कर सकते हो, कर लो. उतना ही आप अच्छे पैकेज पे प्लेस हो गए और उतना ही आप मनी को ज्यादा इंजॉय कर पाओगे. अदरवाइज क्या होगा, बाकी जब आप अर्न करना स्टार्ट करोगे, बाकी आपके फ्रेंड्स जो डिफरेंट फील्ड्स में होंगे वो एंजॉय कर रहे होंगे, और आप वीकेंड्स पे बैठ के लंबी ड्यूरेशन में पढ़ रहे होगे. मैंने कहा लंबी ड्यूरेशन में पढ़ना नहीं पड़ेगा, बट हाँ उसको आप कर्टेल कर सकते हो कि हमें जो आपके पास सिर्फ 2 साल पढ़ना, 3 साल पढ़ना है. देर आर फ्यू स्टूडेंट्स जो जॉब के साथ भी 10-10 साल भी पढ़ना पड़ जाता है, बिकॉज उनकी स्टार्ट ही बहुत लेट होती है करियर की. दे पिक देयर फर्स्ट एग्जाम से राइट आफ्टर देयर जॉब. तो अपनी जर्नी एक्चुअल की पढ़ाई की छोटी आप तभी बना पाओगे जब आप ग्रेजुएशन टाइम को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करोगे. I think no more questions. We can call it a day then. Okay, guys, all the best for your exams. Keep studying, and yes, do appear for the unit test schedule. अभी schedule आ जाएगा आपके पास Monday तक, and we have a test approaching 8 February. तो जिन भी respective subjects का test है, please make sure that you are appearing for the test, and we will record a video also for the same that we will not be able to provide, guys. Please take this request. We will not be able to provide. ना बीमार होना है, ना बीमार होना है, ना कोई और रीजन होना है. अभी से कुछ भी नहीं मिलना. अगर फीडबैक चाहिए तो उसी डेट पे उसी टाइम पे ही हमें टेस्ट सबमिशन चाहिए, उसके अलावा कोई स्कोप नहीं है. So there will be no feedback on tests submitted other than the timings that we will be sharing with you. If there are any timings preferences, at least that can be considered before we roll out the schedule. So if you have any timings, specific timings, ठीक है, आप अपना priority share कर सकते हो team के साथ before we roll out the schedule by tomorrow EOD. If possible, we will take into consideration. Otherwise, the dates are already fixed, you know that, and we will be providing feedback only on tests submitted as per the schedule time. So tests ठीक है students, I changing, think, dates changing, Ashi, won't be possible as we have mentioned. Please don't and I think this time we are having on 7th. So Ashi, it's okay. This time we are having on 7th. So And students, it might be the case
कि स्केड्यूल पे हमारा संडे लिखा और हम टेस्ट सैटरडे कर ले। तो जो भी आपके पास डेट्स है वो वीकेंड की डेट है, उस वीकेंड में सैटरडे को भी टेस्ट हो सकता है, संडे को भी टेस्ट हो सकता है। वी हैव अ लॉट ऑफ फैक्टर्स टू टेक इनटू कंसिडरेशन, तो उसके बेसिस पे हम टेस्ट शेड्यूल करते हैं। तो यस, सैटरडे संडे के लिए दोनों को आपको ओपन रखना पड़ेगा अपने हर वीकेंड। Okay, guys. Good luck, everyone. Thank you. Good night.